Can you do that? If I say alpha and beta are two parameterization and they are equivalent, can you find u? Yes. Can you find a diffeomorphism function? Just compare करना है, that's it. compare करके एक function, या किधर गया, just compare करके you need to find a function which should satisfy bijective हो, inverse और ये सब जो भी condition है. Let me show you. I am giving you two parameterization alpha and beta, and I am saying that check whether they are equivalent. Can you do that? So to check whether they are equivalent, you will give me a function u which is satisfying this property. Is that okay? This is the definition of equivalent. Is that okay? Okay. So now you are having a function u. Now if this function u is increasing function, okay, if this function is u is increasing function, then you will say that your alpha and beta trace out c in the same direction. They trace out c, that is your curve, in the same direction. That means what? U is said to be orientation preserving. Whatever u you are having, if this u is monotonic increasing function, then it is orientation preserving. If this u is monotonic decreasing function, then this uh, is orientation reversing. This is what the thing is. Just let me show you the definition actual. Mm. See, alpha and beta are two parameterization, and when do you say alpha is orientation, ओके हाँ, ये ओरिएंटेड इक्विवेलेंट एक और डेफिनेशन बताया था मैंने. व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेड इक्विवेलेंट? इफ यू डैश ऑफ टी इज ग्रेटर देन जीरो, satisfying this oriented equivalent. Next, orientation preserving. And yeah, what is orientation preserving? If your function u is increasing function, then you say orientation preserving. See, तुम लोगों ने just observe किया पीछे मैंने जो definition बढ़ा oriented equivalent का, उसमें भी क्या था? Your orientation was preserving. उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या था? डेरिवेटिव वाज ग्रेटर देन जीरो. डिड यू ऑब्जर्व दैट? या सो इवन योर फंक्शन यू, पहले यू मिल जाएगा तुमको, अभी जस्ट चेक करना रहेगा वेदर यू इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन. इफ योर फंक्शन यू इज इंक्रीजिंग फंक्शन, then you will say that as orientation preserving, and if your u is decreasing function, then you will say is orientation reversing. व्हाट डू मीन बाय? अगर ग्राफिकली थोड़ा समझो तो इधर देखो. सिंस दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट ओरिएंटेशन सपोज ये सी टू डी है एंड ये ए टू बी है, तो इनिशियल पॉइंट पे बोथ आर गिविंग इनिशियल वैल्यूज, फाइनल पॉइंट पे बोथ गाय इज गिविंग फाइनल वैल्यू. डू यू एग्री? ये इनिशियल पॉइंट है एंड ये फाइनल पॉइंट है. मीन्स ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग था. अगर ओरिएंटेशन रिवर्सिंग हुआ तो ये केस में देखो, सी के केस में आई एम गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू, डी के केस में आई एम गेटिंग मिनिमम वैल्यू, बट हियर ए के केस में आई एम गेटिंग मिनिमम वैल्यू एंड बी के केस में आई एम गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू. डू यू अंडरस्टैंड? सी और डी के लिए मेरे को ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है, वो ए और बी के लिए चेंज हो जा रहा है. दिख रहा है? ए के लिए मेरे को मिनिमम मिला है, इधर सी के लिए मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है. सो दिस इज ओरिएंटेशन रिवर्स हो गया तुम्हारा. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन रिवर्सिंग. इज दैट ओके नाउ? गुड. ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस पार्ट. एक्चुअली अभी देखो हम लोग क्या करने वाले, जो हम लोग पहले इंटीग्रल सॉल्व करते थे ना, तो क्या करते थे, अपने को एक फंक्शन दिया रहता था एंड वी यूज टू, लेट मी जस्ट गिव यू क्विकली एग्जांपल, देन इसके बारे में बात करते हैं. ये एक्चुअली दिस इज़ गोइंग टू मेक आवर लाइफ वेरी इजी. सपोज एक क्वेश्चन दिया है तुमको, तो कैसे सॉल्व करोगे? जस्ट टेल मी. इफ यू आर हैविंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, f of x comma y is equal to 2x square y cube I plus 2x cube y square g. If this is a function and c is the curve, Rahul,
आई विल एडमिट एक्चुअली, मुझे बार बार देखना पड़ेगा इधर एडमिट करने के लिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। सी इज़ द कर्व पैरामीटराइज्ड बाय अल्फा ऑफ t इक्वल टू e रेज टू t cos t comma e raised to t sin t, and this is 0 is less than t is less than 2 pi. Perfect. So this is what you have to solve. क्या solve क्या करना है इधर? Find this integration f over c. How will you solve this? Can somebody tell me? पहली बात तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है कि ये स्केलर वैल्यूड, जिसको हम लोग वेक्टर फील्ड भी बोलते हैं, स्केलर फील्ड बोलते हैं. How will you solve this? Can somebody tell me quickly? You are given a parameterization. Yes? Anyone? What is the formula to solve this? Line integral over C. Dot product, na? Very nice. And this is from 0 to 2 pi. जो भी t पे वैल्यू है, that is 0 to 2 pi. Correct? Is that okay? But do you observe something? ये इंटीग्रेशन इतना easy लग रहा है क्या करना? With respect to t इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, it will be again in two terms, it will be again in two. Do you see this is easy है क्या ये थोड़ा? समझ रहे हैं? मतलब मेथड तो अपने को पता है, देयर इज नो इशू, वी कैन डू दैट, बट इट इज क्वाइट लेंदी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट विल टेक अराउंड 5 to 6 minutes टू मे बी मोर देन दैट. करेक्ट. सो जब भी लाइफ में कभी भी अपने को मेन क्या है, टाइम बचाना है अपने को. सो यू मस्ट गिव अ न्यू थ्योरम और न्यू थिंग सो दैट वी कैन मेक आवर लाइफ इजी. व्हाट डू यू थिंक, डेरिवेटिव करना इजी है कि इंटीग्रेशन करना इजी है? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली डेरिवेटिव ना. यस. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस थिंग, जो भी इंटीग्रेशन करना है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव में चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान से देखो. वी वांट टू सॉल्व दिस गाय ना. ओके. वी हैव समथिंग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फॉर लाइन इंटीग्रल क्या बोलता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डेल एफ हो तो वो क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा बी माइनस एफ ऑफ अल्फा है. दिस इज जस्ट अ सब्ट्रैक्शन. अगर इंटीग्रेशन में डेल एफ हो, व्हाट डू मीन बाय दिस, मतलब अगर मैं ये जो f है उसको मैं ऐसा लिख सकता, डेल ऑफ सम फंक्शन फाई. करेक्ट है. सो मेरा अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ, समझ रहे हैं, देन ये क्वेश्चन मेरा किस में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई में चेंज हो जाएगा. एंड उसका आंसर क्या है, फाई ऑफ अपर लिमिट माइनस फाई ऑफ लोअर लिमिट, दैट इज़ फाई ऑफ मे बी फाई ऑफ अल्फा ऑफ बी बोलता हूँ, माइनस फाई ऑफ अल्फा है. डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट ट्राई टू कंपेयर द थिंग. डेल्टा इंटीग्रेशन डेल्टा एफ हो तो क्या आंसर है, एफ ऑफ अल्फा बी माइनस अल्फा ऑफ ए. व्हाट इज अल्फा बी एंड अल्फा ए? दिस इज कर्व के एंड पॉइंट्स ना. डू यू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज अल्फा ऑफ ए, दिस इज अल्फा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अल्फा ऑफ ए अल्फा ऑफ बी क्या है? करेक्ट. सो ट्राई टू सी, हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज करके वी वांट टू डू समथिंग लाइक दिस. एंड डू यू सी, ये जो फंक्शन है मेरा, ये तुम्हारे कर्व पे डिपेंड करता है क्या? आंसर क्या आ रहा है, मैं किसको सॉल्व करूँगा, कैपिटल एफ को मैं डेल्टा एफ में चूज़ करूँगा. एंड इन दिस केस अपना बस एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये अल्फ़ा बी और अल्फ़ा ए पे डिपेंड करता है. ट्राई टू सी द थिंग. ये क्वेश्चन सॉल्व करना था तुमको, मतलब ये सॉल्व करना था. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं ये फंक्शन को अगर ऐसा रख पाया तो कंडीशन इज दैट इफ़ आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, देन आवर लाइफ विल बी ईजी. डू यू अंडरस्टैंड दैट? बट कंडीशन इज, अगर ऐसा कर पाया तो मतलब इफ़ आई कैन फाइंड अ फाई
if you can find a phi function phi such that f equal to delta phi, then your answer is quite easy to solve. Yes. Do you understand? थोड़ा कुछ समझा क्या? I just want to relate our previous problem with fundamental theorem of calculus. This is the statement of fundamental theorem of calculus जो मेरे को easy दिखा कि integration of del f that is just f of alpha b minus alpha f of alpha a है. So थोड़ा सा easy लगा तो मैंने सोचा कि ऐसा ही क्यों न किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि so that we can make our any of the integration we can make of this form. Correct, but this doesn't work for every. Do you see why this won't work for every people? This will work only for those I can find this phi. If you can find this phi, then this is okay. If you cannot, then you cannot say anything. But mostly in your thing, जितने भी फंक्शन हम लोग ने किए थे सबको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शन जिसके बारे में जस्ट मैं अभी बात करने वाला हूँ. इसको एक वर्ड बोलते हैं हम लोग. बट बिफोर दैट लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग. चलेगा? मतलब करना क्या है तुमको, समझो तुम लोग को. व्हाट इज़ योर फंक्शन? पहले एफ लिखो. व्हाट इज़ योर एफ ऑफ एक्स वाई? राइट योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई. व्हाट इज़ दिस? 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई क्यूब, कॉमा व्हाट इज़ दैट? 2x क्यूब वाई स्क्वायर, 2x क्यूब वाई स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो करना क्या अपने को? वी नीड टू फाइंड एफ. वी नीड टू फाइंड एफ दैट इज इक्वल टू डेल फाई. व्हाट डू यू मीन बाय डेल फाई? फाई विथ एक्स कॉमा फाई डू फाई विथ वाई. इज दैट ओके? यही है. दैट मीन्स कंपेयर करके क्या मिलेगा मेरे को? डू यू सी मैं ये पूरा प्रॉब्लम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा करने वाला हूँ समथिंग. डू यू सी दैट? नाउ कैन यू फाइंड फाई फ्रॉम दियर? फाई कैसे फाइंड आउट करिए? अगर ये दो इक्वेशन तुम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे टाइप क्वेश्चन किए होंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन कब था तुम लोग को? एस वाई में था ना? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो. हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करते? कोई जस्ट आइडिया देगा मेरे को? दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. सो स्टार्ट विथ फर्स्ट गाय दैट इज डो फाई ऑफ डो एक्स इक्वल टू क्या दिया है? 2x स्क्वायर वाई क्यूब. कैन आई इंटीग्रेट दिस? तो मेरे को फाई मिल जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना. सो इफ आई एम इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या आएगा? व्हाट विल बी दिस फंक्शन? अरे बोलो भाई. 2x क्यूब अपॉन, करेक्ट, 2x क्यूब वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस व्हाट इज दिस कांस्टेंट? शुड आई राइट c? शुड आई राइट c or something else? Yes, what will be this? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया मतलब इसके लिए कांस्टेंट कौन है? y is a constant. Do you agree? So it will be some g of y. Do you agree now? मतलब पहले हम लोग कांस्टेंट c लिखते थे, अभी मैं क्या लिखूंगा? इट विल बी अ फंक्शन ऑफ y. करेक्ट? ये टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि नहीं तुम लोग ने? पहले वो बताओ मेरे को, क्योंकि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हुआ होगा ये डेफिनेटली. आई एम श्योर मे बी. व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या करें? यू वांट टू फाइंड फाई मिल गया, लेकिन यू वांट टू फाइंड दिस जी वाई. क्या करूँ? वी आर हैविंग वन मोर इक्वेशन दैट इज फाई ऑफ वाई. सो शुड आई डिफरेंशिएट विथ फाई ऑफ वाई? सो डो फाई बाई डो वाई क्या आएगा? नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ. इज दैट क्लियर? इज द फर्स्ट लाइन क्लियर? I wanted to relate this with your fundamental calculus of line integral. That is, I wanted to write f equal to delta phi. So I wanted to write f equal to dou phi by dou x, comma dou phi by dou y. Just comparing dou phi by dou x is this guy, dou phi by dou y is this. अभी मेरे को just phi निकालना है. I need to see whether this phi exists or not. That's it.
whether there is a phi or not satisfying this true property. So मैंने फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट किया, डो फाई बाई डो एक्स इक्वल टू दिस. व्हाट नेक्स्ट? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो दिस विल बी फाई एंड योर कांस्टेंट विल बी function of y. Now let us differentiate this guy with respect to y. Do you see that? So क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? This will be 3y² आएगा ना. That is, let me write phi again. Phi equal to 2x cube y cube, and here plus gy. So dou phi by dou y, that will be क्या आएगा ये? 2x cube y² आएगा क्या, प्लस g dash of y. Do you agree? बोलो. इसमें सुन, मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, अभी मैंने डिफरेंशिएट किया. ये फाइव मिला, पहले ये समझा तूने. डो फाइव बाई डो एक्स इक्वल टू ये है, इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया तो जी ऑफ वाई. इज दैट क्लियर? डू यू एग्री विद दिस? ओके. नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेकंड कंडीशन यूज़ करना चाहता हूँ, बट सेकंड कंडीशन में डी फाइव बाई डी वाई है, तो मेरे को फाइव पहले से मिला, तो इसको अभी मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई से डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आएगा, डो फाइव बाई डो वाई ये आएगा, और ये क्या आएगा, जी डैश ऑफ वाई आएगा ना. दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई. डू यू सी, इधर मैंने लिखा है पूरा, देखो. फाई इक्वल टू ये दिया है, इसको मैंने डी फाई बाई डी वाई लिया, इधर इंटीग्रेशन नहीं किया मैंने. क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेरे पास डी फाई का वैल्यू इधर दिया था. आई जस्ट वॉन्टेड टू यूज़ दैट. सो डी फाई बाई डी वाई इज इक्वल टू 2x³ प्लस जी. डू यू एग्री? मतलब पहले क्या किया मैंने, फाई एक्स से फाई पे गया, अभी फाई से मैंने फाई वाई पे गया, ऐसा. तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन. इज दैट क्लियर? ट्राई टू सी वंस अगेन, अगर थोड़ा भी इशू हुआ तो. यू वांट टू फाइंड फाई सेटिस्फाइंग दिस टू कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए ना. तो फर्स्ट कंडीशन से मैंने स्टार्ट किया, उधर से मेरे को फाई मिल गया इन टर्म्स ऑफ जी वाई. अभी मेरे को सेकंड कंडीशन तो यूज़ करना है. सेकंड कंडीशन क्या है, डी फाई बाई डी वाई ना. सो लेट अस फाइंड डी फाई बाई डी वाई. डी फाई बाई डी वाई इज इक्वल टू 2x³ y² जी डैश वाई. बट क्वेश्चन में तुमको डी फाई बाई डी वाई का वैल्यू क्या दिया है, 2x³ y². कैन आई पुट इट हियर, दैट इज 2x³ y² and that is 2x³ y² प्लस जी डैश ऑफ वाई. व्हाट डू यू सी, क्या आएगा, ये दोनों गया ना, दैट इज जी डैश ऑफ वाई. हाँ बोलो बोलो. हाँ करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सी पार्शियल डेरिवेटिव मतलब समझता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई मतलब ये फंक्शन में जो भी x या कुछ भी हो सबको भूल जाना है, बस y पे फोकस कर. तो y³ का डेरिवेटिव क्या होता है, y⁻n. x फॉर्मूला क्या है x⁻n का, याद है डेरिवेटिव्स में? तो y³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, अरे भाई 3y². करेक्ट. तो वही लिखा मैंने, देख. 3y², 3 नीचे से कैंसिल हुआ, मतलब y² बचेगा 2x³ y². डू यू सी, वही लिखा है मैंने. 3 कैंसिल, एंड ये जी ऑफ वाई इट विल बी जी डैश ऑफ वाई. ये फंक्शन वाई था, और मतलब इधर कोई कांस्टेंट एक्स का है ही नहीं, तो इट विल बी जस्ट जी डैश ऑफ वाई. डू यू एग्री नाउ? और फिर मैंने क्या किया, डी फाई बाई डी वाई का वैल्यू जो पीछे दिया था, ये टर्म ये मैंने पुट किया यहाँ पे. सो वी सी दैट ये दोनों कैंसिल, जी डैश ऑफ वाई इज जीरो. व्हाट कैन यू से अबाउट जी ऑफ वाई? इट इज़ अ कांस्टेंट, तभी डेरिवेटिव जीरो आएगा ना. यस. हेलो. सो नाउ डू आई हैव अ फंक्शन phi of xy, that is 2x³ y³ अपॉन क्या है ये, अपॉन 3
plus g of y is constant. So I am having a function phi na. Do you agree? करेक्ट, मतलब मैंने क्या किया, f को डेल फाई में रिप्लेस किया. करेक्ट. सो दैट मीन्स व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर c निकालना था, दैट इज रिप्लेस्ड विथ f को मैंने क्या रिप्लेस किया, डो फाई ओवर c. And we know that by fundamental theorem of line integral, this guy is same as phi of alpha b minus phi of alpha a. Is that clear? What is your alpha b and alpha of a? इंटरवल क्या था, जीरो पुट करो ये फंक्शन में, अल्फा जीरो क्या आएगा एंड अल्फा टू पाई क्या आएगा, फटाफट बोलो मेरे को. व्हाट इज अल्फा जीरो एंड अल्फा टू पाई? जीरो पुट किया तो ई रेज टू जीरो, ई रेज टू कॉस जीरो इज 1,0 ना. व्हाट इज टू पाई? ई रेज टू पाई, इट विल बी ई रेज टू, हाँ, कॉमा जीरो. इज दैट क्लियर? डू यू एग्री एवरीवन? यस. मतलब मेरा अभी यहाँ पे जस्ट ये सब्ट्रैक्शन करना है, दैट इज, एंड दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ अल्फा टू, जो क्या था, ई रेज टू टू पाई कॉमा जीरो आया था, माइनस फाई ऑफ नेक्स्ट गाय इज 1,0. जस्ट फंक्शन में पुट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. व्हाट इज योर फंक्शन फाई? सी यहाँ पे कांस्टेंट का कोई रूल रहेगा क्या, सब्ट्रैक्शन हो रहा है अपना. डू यू सी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है ना, तो ये कांस्टेंट जाएगा. नहीं समझा तो वी विल पुट, सो 2x³ y³ अपॉन 3 फंक्शन है ना, तो लेट अस पुट क्या आएगा ये, 2x³ दैट इज ई रेज टू 2 पाई का क्यूब, y³ दैट इज 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सम k, ये फर्स्ट में पुट किया, माइनस सेम 2x³ y³, 0 आ गया दोनों में तो दिख रहा है आंसर तुम लोग को, डिवाइड बाई 3 माइनस k समथिंग. सो के और माइनस के ये जाएगा, और चाहिए तो ब्रैकेट करके ऐसा लिखता हूँ मैं. सो दिस इज क्या आएगा आंसर, 0. डू यू एग्री? डू यू एग्री? पहले अगर करते तो कितना करना पड़ता, समझ रहे थे तुम लोग को, यू हैव टू सॉल्व, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता, पैरामीटराइजेशन पहले तो निकालना पड़ता. पैरामीटराइजेशन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट ये टर्म का डेरिवेटिव एंड ये फंक्शन में पुट करना, दैट वाज अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग. और इधर कुछ करना है क्या इसमें, दिस वॉज जस्ट अ मोटिवेशन टू दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अभी जो भी मैंने यूज़ किया उसका मतलब थियोरेटिकल टर्म में है डेफिनेशन. सो मे बी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, अभी टाइम नहीं है मेरे पास थोड़ा सा, जस्ट आई विल रिवाइज इट वंस अगेन. इज दैट ओके? समझे लॉजिक, समझा क्या क्या करना चाहते हैं हम लोग. वी जस्ट वॉन्ट टू यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ लाइन इंटीग्रल. वो क्या बोलता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई हो, so I can write it as f of alpha b minus f of alpha a. Correct? So what I am thinking, सपोज एक मेरे को एक क्वेश्चन दिया है ऐसा, किधर गया, 2 पेज गया क्या मैं, हाँ, एक क्वेश्चन दिया है फंक्शन और ये अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, एंड वी नीड टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन एफ ओवर सी. करेक्ट? if I can find a function phi such that I can write as f equal to del phi, so ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा. डू यू एग्री? इफ़ आई कैन फाइंड अ फाइव, मेन है कि फाइव फाइंड आउट करना, अगर फाइव फाइंड आउट कर सकते हैं तभी होएगा, अदरवाइज नॉट. इज दैट ओके? विल सी कि सम फंक्शन ऐसे रहेंगे जिसमें फाइव आई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तुम्हारा. यस, डू यू एग्री? मतलब आई नीड टू फाइंड अ फंक्शन फाई सच दैट एफ इक्वल टू डेल्टा फाई. सो इफ आई डू दैट, हाँ बोलो. हाँ एक्चुअली इसको एक मतलब ये जो फंक्शन है ना, एक स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करता है. विल सी. और मोस्टली जितने भी तुम लोग क्वेश्चन पुराने किए होगे ना, ट्राई करना, मोस्टली जितने भी क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे. अगर नहीं किया तो मतलब नहीं कर सकते ऐसा.
बट मोस्टली जितने भी फंक्शन रहेंगे उस पर ये सेटिस्फाई करेगा ही. अराउंड आई कैन से 90% ऑफ द फंक्शन विल सेटिस्फाई दिस. सो एक्चुअली इसमें तुमको काम भी कम करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं? नहीं तो पहले क्या क्या करना पड़ता है ये एफ ऑफ अल्फा टी. सो वी जस्ट क्रॉस द फिंगर कि ऐसा एक फाई एग्जिस्ट करे तो बेटर रहेगा, अपना काम इजी रहेगा. थैंक यू जैमिन. यार मेरे को आई जस्ट फॉरगॉट टू डू दैट. आई थिंक इट वाज प्रतीक्षा. Sorry. Okay. So I'll just repeat it once again and then we will stop. Okay. So we are having a function. ये solve करना था. Logic क्या है? If you write your function f as delta phi, then our life is easy. Correct? Then just अपने को ये put करना है. तो let us see, can I write it? That means let us write f equal to delta phi. What is your delta phi? Phi with respect to x, phi with respect to y. That means compare करो, phi with respect to x is equal to this guy and phi with respect to y is this guy. Correct? What next? I will start with this guy. Same to you can also start with this thing. ये इससे स्टार्ट किया तो तुमको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स. यहाँ पे एडिशन सम जी ऑफ एक्स होएगा. मैंने ऊपर वाले से फर्स्ट स्टार्ट किया, दैट इज डो फाई बाई डो एक्स. तो पहले ये बताओ तुम लोग ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि नहीं? डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व दिस, ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम हियर. याद है कि नहीं, मतलब ऐसा किया है कि नहीं? मोस्टली मैंने तो मतलब डिफरेंशियल क्वेश्चन में देखा है ऐसे क्वेश्चन है, तुम लोग के सिलेबस में आई थिंक. जस्ट टेल मी अगर कुछ ऐसा देखा है क्या तुम लोगों ने? यस, एनीवन? करेक्ट, यस, गुड. सो फाई निकालना है तो क्या करने का, फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट किया मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू रहता है इंटीग्रेशन लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हाँ, सो बाकी जो भी है सब कांस्टेंट. तो कांस्टेंट कौन है? इसके लिए वाई भी टर्म है, तो जी ऑफ वाई विल बी अ कांस्टेंट फॉर दिस फंक्शन. सो फाई इक्वल टू दिस प्लस जी ऑफ वाई. व्हाट नेक्स्ट? फाई मिल गया, बट अपने को एक सेकेंड कंडीशन भी है, फाई ऑफ वाई ना, डो फाई बाई डो वाई. सो इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करने का, डो फाई बाई डो वाई इज इक्वल टू दिस. कंपेयर विद दैट प्रीवियस वन, डो फाइव डो वाई का वैल्यू क्या दिया है, 2x³ वाई स्क्वायर दिया है. मतलब ये दोनों कैंसिल, जी डैश ऑफ वाई 0, मतलब जी ऑफ वाई इज अ कांस्टेंट ओनली. सो फाई ऑफ एक्स वाई क्या मिलेगा, मतलब वी आर गेटिंग अ फाई. डू यू एग्री? मतलब अपना लाइफ हो गया, बहुत ईजी हो गया, बिकॉज वी आर गेटिंग अ फंक्शन फाई विच we can write f as delta of phi. So our question that integration f over c that reduced to integration over del phi. Correct? So we know that by fundamental theorem of line integral, this value is same as phi of alpha b minus phi of alpha a. मतलब जस्ट मेरे को बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है, दैट्स इट. डू यू सी इसमें मैंने पैरामीटराइजेशन का कहीं पे यूज़ किया क्या? पूरे सोल्यूशन में कहीं पे मैंने पैरामीटराइजेशन का यूज़ किया? अल्फा ऑफ बी और अल्फा ऑफ ए में पैरामीटराइजेशन मत बोलना, क्योंकि वो तो एंड पॉइंट है. सो एंड पॉइंट तो क्वेश्चन में तुमको दिया ही रहेगा, समझ रहे हैं? ये अल्फा ऑफ जीरो और अल्फा ऑफ टू अगर दिया भी होता, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू फ्रॉम दिस पॉइंट, देन वो तो दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, कर्व के एंड पॉइंट है वो. डू यू सी बाकी कहीं पे मैंने पैरामीटरेशन यूज़ किया? मतलब यू सी अ थ्योरम, इफ आई कैन राइट माई फंक्शन एज दिस, देन योर इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट. करेक्ट. सेम अभी तक हम लोग ने देखो कोई भी थ्योरम, कोई भी डेफिनेशन नहीं बोला इसके बारे में, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. कि if your function can be written as like this, then your integral of this function is path independent. Do you agree?
Good, correct. So maybe I will give you one question to solve, and try solving like this only. You can solve any of the your previous question, जो भी जितने हम लोग ने क्वेश्चन किए थे ना, you can try that also and see. मोस्टली हम लोग ने किया ये, लेकिन हाँ, फाइव ऑफ अल्फा बी माइनस फाइव ऑफ अल्फा ए, फाइव फंक्शन मिला है ना देखो, करेक्ट है. बट व्हाट इज योर अल्फा बी, कर्व का एंड पॉइंट, एंड व्हाट इज योर अल्फा ए, कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट. सो पहले अल्फा बी और अल्फा ए निकाल लो क्वेश्चन से. अल्फा बी क्या है, अल्फा बी ये टी कहाँ से, जीरो और टू पाई से है ना. अल्फा बी मतलब टू पाई पे वैल्यू क्या आ रहा है, ई रेज टू टू पाई कॉमा जीरो, एंड जीरो पे क्या आ रहा है ये, समझ रहे हैं, ये एंड पॉइंट समझा क्या. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द पैरामीट्रेशन का एंड पॉइंट थिंग. यस, इज दैट ओके, डू यू एग्री विद दिस थिंग. हाँ, तो जस्ट यही अभी उसमें पुट करना है, दैट्स इट. फाइव ऑफ अल्फा बी मेरा क्या है, ई रेज टू टू पाई कॉमा जीरो. तो ये फंक्शन में मेरे को एक्स की जगह पे ई रेज टू टू पाई पुट करना है, वाई की जगह पे जीरो. सो वही किया मैंने, ई रेज टू टू पाई कॉमा जीरो. सो फंक्शन दिख रहा है, टू ई रेज टू टू पाई का क्यूब इंटू वाई इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा टर्म एक्चुअली जीरो ही हो गया. देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, this part plus 0 plus k, and minus same here, this part plus k. Is that okay? Okay. एक ट्राई करो, एक क्वेश्चन में देता हूँ. लेट f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और सॉरी डी एक्स नहीं, आई और जे बोलता हूँ फर्स्ट, आई प्लस टू एक्स वाई जे. दिस इज योर फंक्शन and you want to find where your c is a curve or a straight line बोल दो, or any curve passing from having yeah, end points 1 2, straight line बोलता हूँ मे बी. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. अगर अपने को ये क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस नहीं पता होता तो इसको कैसे करते हैं. पहले तो अपने को एक पैरामीट्रेशन निकालना पड़ता, अल्फा ऑफ टी, करेक्ट. स्ट्रेट लाइन है तो इजी है पैरामीट्रेशन, दैट इज़ वन माइनस टी इंटू फर्स्ट वेक्टर प्लस दैट इज़ वन कॉमा टू ना, प्लस टी इंटू सेकेंड वेक्टर. डू यू एग्री. इससे मैं अल्फा ऑफ टी निकालता. अभी मेरे को क्या चेक करना पड़ता, जस्ट टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन ओवर एफ सी इज इक्वल टू सेम एज एफ ऑफ अल्फा टी इंटू अल्फा डैश टी. डू यू एग्री. पहले मेरे को क्वेश्चन में यही करना पड़ता. इवन ये क्वेश्चन इजी है, यू कैन डायरेक्टली डू दैट, वो भी कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई दिस. फाइंड अ फाई सच दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई, एंड तुम्हारा फंक्शन किस में चेंज होएगा, दिस विल बी चेंज एज डेल्टा फाई, एंड दैट विल बी सेम एज, दैट विल बी चेंज एज फाई ऑफ end point minus starting point. What is the end point? That will be phi of minus 3,4 minus phi of 1 2. मतलब अगर तुमको फंक्शन phi मिल गया तो जस्ट तुमको वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट. डू यू एग्री. क्वेश्चन समझा सबको. जस्ट ट्राई दिस थिंग, चेक पहले, कैन यू फाइंड अ फंक्शन phi सेटिस्फाइंग दिस थिंग. सेम जैसे हम लोग ने ये क्वेश्चन किया. सी इसमें हम लोग ने इंटीग्रेशन कहाँ किया, क्या कहीं पे, जस्ट वो भी वन वेरिएबल का किया था फर्स्ट स्टेप में, दैट्स इट. बाकी सब डिफ्रेंशिएशन नहीं किया इधर, बस इंटीग्रेशन, वो भी छोटा सा इंटीग्रेशन. ये फंक्शन के हिसाब से इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं है वो. ओके, इज दैट ओके. सो ये ट्राई करो ये क्वेश्चन एंड टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, देन वी विल सी ये क्या मतलब, ये स्पेशल कंडीशन क्या है, वाई दिस इज सो स्पेशल.
यानी ये फंक्शन को बोलते क्या है, इसको फाई को क्या बोलते हैं, ये सब का नेम है कुछ तो, ठीक है।